बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके फिर से पुनः एक बार। और हम लोग हर दिन कुछ अच्छा करते हैं, हर दिन कुछ अपने को इम्प्रूव करने के लिए ऐड करते हैं। हम लोग पॉजिटिव एनर्जी से रोज़ भरते हैं, रोज़ चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम लोगों के अंदर नई ऊर्जा आए। आज हमारे परम प्रिय मित्र विपिन पांडे जी यहाँ आए थे। स्वयं उन्होंने आकर एक टीम की रचना की जिससे कि हम लोग इस कार्य को और आगे बढ़ा सकें और अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। और इस दरमियान हम लोगों ने एक्सेल कॉन्सेप्ट क्लासेस के और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस की ज़रूरत को और समाज में कितनी अधिक इन चीज़ों की आवश्यकता है, इस तरह की सोच के लोगों को एक साथ आने की कितनी आवश्यकता है, इस पर गहन चिंतन किए। हमने समाज के लिए कुछ अपने योगदान और कैसे हो सकते हैं उसको आगे बढ़ाया। और इस कड़ी में आज हमने एक डिटेल क्लास का भी आयोजन किया है और आप इसको स्वीकार करें, सुने। एज यू नो दैट वी आर डूइंग several sessions on personality development. The actual need of these classes was only to encourage our teachers so that they can produce some good outcome, good classes to our students. And this was started about 1 month ago in this platform, and we observed that very people are enthusiastic about this thing but hesitating till date. Again, I am going to narrate some points on what are the personality. Today I have chosen to present personality as a alphabetical manner, and I am going to explain each and every alphabet of personality with my thoughts, my words. It is very nice to say that P for power of setting his goal. The person who is having the knowledge and caliber to set his goal is a good personality person. So we can say that power of setting his goal is come from P of that personality. E is representing the eagerfulness of person to learn any new thing. eagerfulness, उत्साही होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए, eagerful होना चाहिए। तो E represent the eagerfulness of learner. And we are coming on the third word, that is respectful for others. The person who is having good personality should be respectful to others. With these things we can conclude that the person who is have power to set his goal, eagerful to learn new things and respectful to other, can project himself as a good person to the society. After that we come on fourth alphabet, that is S. S for solutions. Who can serve the solutions, who can provide solution of any problem. The personality जो अच्छी पर्सनालिटी वाले पर्सन जो है, हमेशा व्यक्तित्व वाले पर्सन, अच्छे व्यक्तित्व वाले पर्सन सोल्यूशन खोजते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। ये समस्या आई है, अब इसका क्या हम सोल्यूशन दे सकते हैं। इस तरह से एस फॉर सोल्यूशन। आफ्टर दैट वी कम फ्रॉम ओ, वी कम अबाउट ओ। ओ इज ओरिजिनल. O for original. In my sense, you can use other word to obedient and other things, but I am saying that original. Original content can produce a big result from everyone. And कोई भी चीज अगर नाटकीय होगी या अपनी अपनी पहुंच से बाहर की होगी, दिखावे की होगी, तो बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। तो अच्छी पर्सनालिटी रखने के लिए, अच्छा व्यक्तित्व होने के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आप हैं उसको आगे बढ़ाएं, जो आप कर सकते हैं, जो ओरिजिनलिटी आपके अंदर है उसको आगे बढ़ाएं। तो दैट इज द ओरिजिनल। इसीलिए हमने यही कहा, आप जिस विषय को दे सकते हैं, जिस क्लास को दे सकते हैं, जिस चीज को आप उभार के अपने अंदर ला सकते हैं, उसी पर काम करिए। दैट इज योर नीच। एक्चुअली if we searching the niche, then we have to search the what is our original content, what we can produce in better way. So this is O for original in content. We come with N. Before coming on N, because I am disclosing this N after the opening of the class, I am coming on A. A is action taking personality. हमें सब आता है,
हमें सब आता है, हम सब जानते हैं, हमारे पास ज्ञान का अभाव नहीं है, हम सोसाइटी को कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग एक्शन, सो दिस इज ऑल्सो ए बिग लैक. So the person who is having good personality and want to celebrate it in a nice manner, he has to take some action. After that we come on L. L for loyalty. Loyalty towards community. In the space, in the position in which he is present, he should be loyal about all the surrounding people, all the communicators, so that this loyalty can be converted in the good thing of the society. And I for innovative, I am using two words with these things, innovative and introspective. Introspective is urgent requirement because if we take some action, if we are producing some solution, if we are original in our content, if we are action taking, eagerful and power of setting goal, we should be introspective too. If we do introspection, we can correct ourselves on any point, and we have to innovative because there is a where बहुत सारी भरमार है चीज़ों की, यहाँ चीज़ों की कमी नहीं है, करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कौन कितना इनोवेटिव तरीके से उसी चीज़ को कर सकता है. मान लीजिए इसी क्लास को मुझे कल पढ़ाना हो, मैं और बेहतर तरीके से पढ़ा सकता हूँ, कल आपको भी इन पॉइंट्स पे बोलना हो और इससे अच्छा बोल सकते हैं. तो हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा, यूनिकनेस खोजनी पड़ेगी. हर व्यक्ति के अंदर यूनिकनेस है, उस यूनिकनेस को हमें सोसाइटी के लिए उपलब्ध कराना है. तो दैट इज इनोवेटिव, इंट्रोस्पेक्टिव. एंड वाई कम्स फॉर ऑल्सो लिव फॉर योरसेल्फ. हमें अपने लिए जीना सीखना होगा. जो व्यक्ति अच्छे पर्सनालिटी के धनी होते हैं वो अपने लिए समय निकालते हैं, अपने को वर्कआउट करते हैं, अपनी स्टडी पर फोकस करते हैं, उन चीज़ों के लिए जाते हैं जिन चीज़ों से वो इनरिच होते हैं. तो हमें अपना थोड़ा सा हिस्सा अपने जीवन का, अपने धन का, अपने व्यक्तित्व का वहाँ खर्च करना चाहिए जहाँ हम अपने को विकसित कर सकें, अपने को ग्रूम कर सकें, इंजॉय कर सकें. इसलिए हमें अपने लिए भी जीना सीखना होगा. हम समाज के लिए भी जिए, परिवार के लिए जिए, लेकिन हम खुद के लिए भी जिए. और यील्डिंग होना चाहिए, हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए, हमें प्रोड्यूस करना चाहिए. कोई भी अच्छी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति यदि प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसको लोग नहीं जानेंगे. तो इसलिए अंत में ये वाई आता है, इसीलिए कि आप अपने लिए जीजिए और उसके साथ साथ प्रोडक्टिव होइए. अब हम एक बात पूछते हैं कि यदि ये टी की बात हम करें, ये टी गोले में रखा गया है और ये एन को गोले में रखा गया है, इनका क्या पर्पज है? टी कम्स फॉर टैलेंट्स. टी कम्स फॉर टैलेंट. हियर द पर्सन हु इज हैविंग सम टैलेंट्स, देन ही कैन प्रोड्यूस सम गुड थिंग with his personality and he should be tracking his goal. उसे अपने गोल को सेट करने के बाद उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने आना चाहिए. T comes for two word that is talent and tracking. He should be tracking towards the goal. What is the goal and objectives? He should be thinkable about that thing. So if we see that what are the actual concept of personality is improving all these power to the people so that overall development of the person can be possible. If we come from what is N, इन आता है नेवर लूज चाइल्डिश नेचर. हमें अपना बचपना नहीं खोना चाहिए, हमें अपने बचपने के अंदर रहना चाहिए. जो व्यक्ति बचपना खो देता है वो जिंदगी में कुछ नई चीजों को नहीं आत्मसात कर पाता. हमें अपना बचपना याद होगा, आप कैसे चल पड़ते थे, किसी चीजों के लिए जिद कर पड़ते थे, किसी चीजों के लिए लगे रहते थे. जब से हम बड़े हुए हैं तब से हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ अपने स्थान से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम कुछ इनोवेटिव नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यूरियस नहीं हैं. बच्चा हमेशा प्रेजेंट में जिंदा रहता है, न पहले की स्थितियों की चिंता करता है और न बाद की संभावनाओं की. वो प्रेजेंट में जीता है. इसलिए व्यक्ति को जिसकी पर्सनालिटी अच्छी होती है वो बच्चे बन के रहना चाहते हैं, बच्चे बन के जीना चाहते हैं. इसलिए वी शुड नेवर लूजिंग अवर चाइल्डनेस in our inner conscious so that you can improve yourself, you can innovative, innocent
एंड होपफुल एंड कीप गोइंग लर्नर। सीखने की क्षमता बढ़ जाती है जब आदमी बचपना करता है, बचपनों के साथ रहता है, बच्चों के साथ खेलता है, या अपने बड़ों के साथ भी बचपन का भाव रखता है कि हम तो बच्चे हैं, हम तो सीख रहे हैं, तो नई चीज़ों को सीख पाता है और एंजॉय कर पाता है। जो व्यक्ति बड़ा होकर जीता है वो बहुत अच्छा समाज के लिए कोई बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाता। इस पुस्तक में हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका टाइटल बहुत ही अच्छा है, असफल होना जरूरी क्यों। इस चीज से हमें पता चलता है कि जब आप एकदम नीचे जाकर सोचते हैं तब आपको आगे का रास्ता कैसे करना है वो पता चल जाता है। इसलिए इस पुस्तक को जहां तक हो सके इसको पढ़ते रहिए। मैं पढ़ के इसमें से नई नई थॉट्स निकाल निकाल के आपको देता रहूंगा। आप इसको एंजॉय करिए जिससे कि आप अपने पर्सनालिटी में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हम लोग एक बात और फ्री एडू मूवमेंट चला रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग सभी लोगों को एंजॉय करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, बच्चों को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज फिर हम पुनः कहते हैं कि 20 को हम लोग की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें हम लोग फ्री मीटिंग है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे। जैसे हम लोग प्रीवियस मीटिंग को पूरी तरह से खोल दिया था लास्ट में, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, तो आप लोग उसको एंजॉय करिए। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारे मीटिंग के कंटेंट मिलेंगे। आप उस पर कमेंट करिए, आप उस पर इंटरेक्ट करिए जिससे कि इसका सही रियल सेंस में एंजॉय हो सके। हम लोग साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं, हमेशा कुछ नई चीज़ सोचते हैं, उन चीज़ों को सोचते हैं जिससे कि हम लोग रूट लेवल पर कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचा पाएँ। अच्छी चीज़ें लैब में रह जाएंगी और वो अगर समाज तक नहीं पहुंच पाएंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है सोशल मीडिया के थ्रू। कैसे हम इंगेज कर सकते हैं, कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को अपना साइंस के ल्यूसिड वे में नॉलेज दे सकते हैं। जिस चीज़ को लेने में बच्चा कतरा रहा है उसके प्रति उसका रुझान कैसे बने, वो चीज़ों को ऐसे ही जान पाए, इसलिए हम लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसका इंजॉयमेंट होना चाहिए। यहाँ आज 200 से ज़्यादा लोग हैं, हम लोग इस क्लास में 200 से ज़्यादा लोग हैं। ये बहुत बड़ी क्लास है। इतनी बड़ी क्लास एक कहीं भी ऐसी ऑर्गेनाइज नहीं की जाती है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों से कह रहा हूँ, जब आप इन चीज़ों को अपने अंदर लाएंगे तभी इस क्लास का पूरा मज़ा आने वाला है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म के बाद हम लोग 5000 पीपल के बीच में यही सेम क्लास रखेंगे 2 दिन बाद। तब उनके कमेंट देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि हम जिस चीज़ पर चुप रह गए उस पर लोग कितना वाह वाह ताली पीट रहे हैं। तब आपको महसूस होगा कि नहीं, हमें कुछ रिप्रेजेंट करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए जिससे इनका मनोबल बढ़े और इन चीज़ों में और सुधार आ पाए। तो हमें अपने तरीकों में बदलकर, प्रधानमंत्री जी ने कल ही अपने संबोधन में कहा है, परसों ही, कि चीज़ें अब चलनी पड़ेंगी। लॉकडाउन पीरियड अब खत्म हो चुका है। अगर देखा जाए तो अब हमें इन्हीं परिस्थितियों में चलने की ओर बढ़ना होगा। हमें इस मानसिक स्थिति से बाहर निकलना होगा कि हमें लॉकडाउन में रहना, हमें बचना है, बिल्कुल बचना है, लेकिन उसके पूरे प्रोसीजर्स हैं। उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हमें नई अपॉर्चुनिटी, वोकल होना होगा अपने प्रोडक्ट के लिए और अपने प्रोडक्ट को बेचना है। कोई भी चीज़ आप इनोवेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए वोकल होना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले 1.5 महीने में इन चीज़ों को कह के प्रयास किया है, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी और अपनी अच्छी टीम को पाने के लिए, जिससे कि हमारी इतनी मजबूत टीम रहे कि हमारे साथ जुड़ के अपने प्लेटफॉर्म पर भी वो करें और हमारे साथ जुड़ के हमारे कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएं, जिससे कि समाज में बहुत सारे बच्चों का भला हो सके। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी हम लोगों की अपनी ही बात को समर्थन किया है, कैसे चलना है उसके तरीकों में बदलाव करने को कहा है। और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट तो यही है कि हम अपने सोशल मीडिया के छोटे से अंश को अपने बच्चों के लिए फ्री कर दें और समाज में इन चीज़ों की कमी ना रह जाए कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाया। तो पढ़ने के कंटेंट, कम से कम 12th तक के कंटेंट हम लोग इसमें डालें, सोशल मीडिया को भरें और अपने को बूम करें। With these words, I am submitting all these things before you. You should comment on these things. You should hear each and every word of this class and write down on page. And after that, you should try your verdict about these words. So that this is the activity for today's class. I hope you all are enjoying this thing.